Questions to us? So, in the last lecture, we have seen different types of operators in PHP. Now, today we will be discussing about the control structures in PHP. So, what exactly a control structure is? Control structure मतलब रहता है क्या है? It is a block of program which is used to analyze, and based on the condition it will put to the direction. We will understand what exactly it means. हमने ये control structures JavaScript में भी देखे हैं. Those are similar here in PHP. Okay, so the control structure which we will be studying in PHP are if statement, if else, and in the loop structure. Loop मतलब क्या है? A particular block of code it will be getting repeated many times based on a particular condition. So looping में आप देखेंगे कि दो टाइप के लूप्स है. एक फॉर लूप है जो हमारा ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में हुआ है, and there is a for each loop which is used for an array. We have seen what exactly an array is. Okay, we will be again revising here in this lecture what an array is. So I hope the control structure is clear what exactly a control structure is. It is a block of code which analyzes the program and decides its path, where in which direction it should go based on some condition. Okay. So the first control structure which we will be studying is if statement. If statement in PHP. So first we will see what for what condition this if statement is used. Generally, when you want to check some condition whether this condition is satisfied, then do this, or if another condition is satisfied, then do this. So here in the syntax you can see how an if block is executed. So how is this syntax? It is if bracket open, and in the bracket you have to mention what condition we are talking about. It can be anything. Suppose my condition I want to check whether my age is greater than 18 or not. And if my age is greater than 18, in the if statement I want to print that you are eligible for getting a license. Okay. So here how I will write if age is greater than or equal to 18. If that condition is satisfied, then it will go into the if block and it will execute the block of statement. So what our block of statement here is that it will print you are eligible to get a license. Okay, so this is how an if statement works. We will see it with an example. See here one more thing. The statement allows programmer to make decision based on one or more conditions. And it executes that piece of code conditionally. Conditionally मतलब अगर ये condition if में जो दी है वो satisfy होती है, then only it will go into that if block. Otherwise, it will skip that whole if block and go to the next statement, which is there after if condition. Okay, so here you can see there are two if blocks. Suppose it checks for this first condition. If it is false, then it will skip this whole block, and again it will check here for the second if condition. Okay, so let us see this with an example. So here this is the code for if statement. Here you can observe what are the things we are using here. What we have done in the first line, we have taken a variable as marks equal to 50, means we have taken a variable marks and we have assigned a value 50 to it. Okay, now we want to check whether the student is passing or not, and for that a particular criteria is there. Suppose the marks of students are greater than or equal to 60, then we have to print that he has passed with first class. Okay, so if my condition is that I want to check whether my marks are greater than or equal to 60. So that particular condition you have to write in the if statement. How will be the syntax? If in the bracket you will have to write the condition. What is our condition? Understand, student, whenever you are using any variables, previously in JavaScript we were using simply their names, but when you are using any variable in PHP,
you have to make the use with dollar sign. Okay, so dollar marks greater than or equal to 60, then only what I have to do, I have to print you have passed with first class. Okay, so now understand what are my value or what is my value in marks. It is 50. हाँ, तो marks में कितना value है 50. So it will go to this if block and it will see if 50 is greater than or equal to 60. Is it satisfying the condition? Is it returning a true value here? No, 50 is less than or equal to 60. That is why it won't go into this if block. Understand? If the condition is not satisfied, if the answer of that condition is written as false, it will not go to the if statement. What it will go, it will go to the next slide. That is what echo end of program. So if my marks are 50, it will just print me end of program. Suppose if I change here and make mark as 70. Now again it will go to this if marks are greater than or equal to 60. But now here you can observe, since our mark value is 70, that is greater than or equal to 60. Hence, it will execute this whole block of if and it will print echo you have passed with first class. Okay. Now, when the function if statement is executed, it goes to the next line also. तो क्या होगा? You have passed with first class तो आएगा ही आएगा. After that, it will also print end of program. Okay. I hope it is clear. Now we will see if else statement. See, अभी हमने देखा if statement. उसमें क्या कर रहे थे हम? सिर्फ एक कंडीशन कि अगर लाइसेंस मिलेगा, अगर नहीं है तो क्या है ना. इसका उन्होंने कंडीशन दिया था कि अगर तुम्हारा एज 18 से ग्रेटर, बट अगर उसका एज नहीं है तो क्या, दैट इज इनकम्प्लीट, है ना. तो देयर इज अनदर स्टेटमेंट व्हिच इज इफ एल्स. मतलब अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इफ यू आर नॉट ग्रेटर देन 80, देन एल्स डू दिस. ओके, दिस इज हाउ द इफ एल्स statement works. It allows the programmer to make decision based on either of this or that condition. मतलब अगर एक if ये कंडीशन नहीं है तो ओके, इफ ये इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो. ऐसा ये चलता है इफ एल्स के. ओके, तो यू कैन सी इफ कंडीशन इज सिमिलर, एल्स में नो कंडीशन. मतलब अगर इसमें की एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा ही जाएगा. समझ में आया? अगर इफ कंडीशन फॉल्स आई तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा. अगर इफ कंडीशन ट्रू आई तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा क्या? वो एल्स ब्लॉक में जाएगा नहीं. अंडरस्टैंड? मतलब यहाँ पे उसने प्रोविजन क्या दिया है कि अगर तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इट इज नॉट गेटिंग द ट्रू वैल्यू, देन देयर इज अ प्रोविजन गिवन कि आप ये कर लो कि अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. तो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल. Okay, so this is an example. Now see here again similar type of example is there. I have taken marks equal to 80. Okay, हमारे marks के variable में कितनी value है 80. Now I am checking if marks are greater than equal to 60. ठीक है, तो अभी इसमें हमारी वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है? ये मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है क्या? नहीं है. है मतलब इफ ने क्या रिटर्न किया है? ट्रू. तो अगर इफ इज ट्रू इट विल गेट एग्जीक्यूटिंग दिस ब्लॉक, दैट इज यू हैव पास विद फर्स्ट क्लास. ये प्रिंट होगा. ऑब्जर्व दैट एल स्टेटमेंट में वो जाएगा नहीं. क्यों? क्योंकि इफ कंडीशन जो है वो ट्रू आई है. राइट. नाउ सपोज इफ आई एम मेकिंग हियर चेंजेस. क्या मैंने चेंजेस किए? मार्क्स में क्या डाला है? 50. Now this if condition, it will give me the output as what? True or false? It will give me false. So we have already seen अगर if false आता है तो वो else में चला जाएगा and it will print you can do better. Okay, so the output shown here was for that 80 marks. Okay, I hope it is clear. Simple है. if मतलब एक ही कंडीशन दिया है, अगर ये है तो ये करो, अगर नहीं है तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं क्या करना है. इसी के लिए क्या हो गया है? इफ एल्स आया. अगर इफ
कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो एल्स जाके आप ये करो. ओके, सो दिस इज हाउ एन इफ एल्स structure or statement works. Again there is one more example of if else. अभी यहाँ पे देखो बॉडी में आएगा वो देखिएगा क्या प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन एंड ऑड. सो हाउ डू वी चेक वेदर अ नंबर इज इवन एंड ऑड और ऑड. अगर एक नंबर डिविजिबल बाय 2 है मतलब क्या है उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए if we divided by 2. So here you will be using the modulus operator. Right? I hope you remember modulus. Modulus आपको क्या निकाल के देता है? It returns as the remainder of that particular division. So now for checking whether a number is even or odd, we have to check the modulus. That is, we have to divide that particular number by 2 and check the remainder whether it is 0. Okay, so this is the logic for how to check a number whether it is even or odd. Okay, so you have to concentrate on this PHP part. We are taking a number that is 20 in a variable a. So हमारा variable a में क्या value है 20. Now we have to check whether this 20 is even or odd. तो हम if लिखते हैं. if ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा नंबर है even, नहीं तो it is odd. Okay, now what condition we want to check? That the value of a when divided by 2 should give us remainder as 0. So you can see $a modulus 2 मतलब मैंने a की जो वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड किया है और उसका रिमाइंडर जो आता है वो हम चेक कर रहे हैं. इक्वल टू मतलब वी आर चेकिंग. रिमेम्बर हमने ये सब देखा है. इक्वल टू मतलब आई एम चेकिंग वेदर द रिमाइंडर ऑफ a divided by 2 is equal to 0. If it is yes, then the number is even. है ना. और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है इफ द कंडीशन सपोज माय नंबर इज नाउ 21 तो क्या होगा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या. इट विल से दैट द कंडीशन इज फॉल्स. तो हमने क्या पढ़ा है अभी कि अगर इफ फॉल्स आता है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा वो कहाँ चला जाएगा एल्स में चला जाएगा. नाउ हियर कैन यू ऑब्जर्व दैट वी हैव नॉट यूज्ड द कर्ली ब्रेसेस है ना. हमारे ऐसे पहले प्रोग्राम में कर्ली ब्रेसेस थे. नाउ अगर आपको इफ के बाद या एल्स के बाद अगर एक ही लाइन एग्जीक्यूट करनी है दिस इज द ओनली लाइन विच यू हैव टू एग्जीक्यूट आफ्टर इफ. So there is no need to give the parenthesis. Okay, if there are multiple lines which you have to perform in if condition or else condition, then only these parentheses are mandatory, right? So let us see. The next thing is the loop structure. Okay, तो loop हमने क्या देखा है. What is a loop? Loop मतलब एक particular block of code which is going to get repeatedly executed for some particular condition है ना. तो उसमें से हमने for loop already देखा है. We have already seen for loop, how a for loop works in JavaScript. Same syntax and same technique और same execution is there for loop. पहले देखेंगे हम syntax कैसा रहता है. For in the bracket there are total 3 things which you have to give which are semicolon separated. So what is the first thing you are giving in for loop? Initialization. You have to initialize some particular variable to some value, right? Then after initialization there is a condition. We need to check whether the condition it is satisfying. If this condition is satisfying then only it will execute this block of code. If this middle condition is not satisfied the block of code mentioned in the for loop is not executed. Okay, and the last thing you are doing here in the loop for loop is incrementation or decrementation. So we've already seen increment means increasing that value by 1 and decrement a particular value by 1. आप उसमें और भी एडिशन कर सकते हैं बट सिंपल अंडरस्टैंड. वी जनरली यूज इंक्रीमेंट मतलब क्या है x से इंक्रीमेंट. सो वी राइट x plus plus. So we are increasing the value of x by 1 and if I write x minus minus it is decreasing my value of x by 1. Okay, so understand. Now we will see how exactly the for loop works. Okay, with an example we'll see. So see here, this is an example of a for loop. First understand. अभी मुझे बताओ ये लूप है तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड ये लूप चलेगा कितनी बार है ना. वी हैव टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क फॉर सम पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम. सो हियर यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो लूप है वो कितनी बार चलेगा. देखो हमारा
आई जो है उसका वैल्यू क्या है, 1 है. ओके, सो आवर आई इज इनिशियलाइज्ड टू 1 एंड वी हैव टू चेक द कंडीशन एज आई लेस देन और इक्वल टू 5. मतलब आई 1 है तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. आई जब 2 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या? यस, बिकॉज 2 इज अगेन लेस देन और इक्वल टू 5. 3, 4, 5. तो जब i की वैल्यू 5 है तब तक ये लूप चलेगा. सो इन शॉर्ट कैन वी से दैट दिस पर्टिकुलर लूप, फॉर लूप मतलब ये जो फॉर लूप है पूरा, इसमें का यही एक स्टेटमेंट है, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 5 बार होगा. राइट? I hope it is clear that this loop will execute 5 times. How did we conclude this 5 times? Because हमने i को इनिशियलाइज किया है 1, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक सिर्फ वी आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ आई हियर. मतलब आई नेक्स्ट लूप में कितना होगा, 2, फिर 3, 4, 5. जब आई में 5 वैल्यू आएगी एंड इट विल चेक 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, इट इज गिवन स्टिल ट्रू, तो हमारा लूप 5 बार एग्जीक्यूट होगा. राइट? तो पहली बार कैसे होगा, देखो. पहली बार वो करेगा आई इक्वल टू 1, मतलब आई में उसने वैल्यू क्या डाली है, 1. It will check for that condition whether I is less than or equal to 5. If it is getting true here, then only it will go into this for loop. अगर इसमें false आया तो वो for loop से बाहर होगा, exit होगा. For first case what happens, 1 is less than or equal to 5. Agree? तो ये true आई तो इधर जो भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे वो एग्जीक्यूट होंगे. तो क्या स्टेटमेंट दिया है, इको द नंबर इज डॉट $i dot e. See, this is just concatenation part. Don't get confused. यहाँ पे important क्या है? The number is $i and this dot operator is what? Concatenation means we are simply joining the two strings. Okay. So what will be the first line printed? The number is 1. क्योंकि यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? I की वैल्यू. What is the I value first? It is 1. Okay. It is initialized to 1. ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद इट विल गो टू द इंक्रीमेंट पार्ट. द सीक्वेंस इज हाउ, it will initialize only once, it will check the condition, if it is true it will go and execute the block of statement, and at the end of the block of statement it will increase it by 1, and then again it will repeat the same statement. सिर्फ इनिशियलाइजेशन एक बार ही होगा. इसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद हमारी आई की वैल्यू क्या होगी, अभी इंक्रीमेंट होगी, इट हैज बिकम नाउ 2. ओके, सो हमारी आई की वैल्यू नाउ इट इज 2. नाउ दिस इनिशियलाइजेशन इज ओनली वंस, ये हमारा ऑलरेडी हो गया. तो करंट वैल्यू आई की कितनी है, 2. So now again it will check whether 2 is less than or equal to 5. It is true. So it will go here. It will print $i. $i now it is what? It is 2. ठीक है. ये एग्जीक्यूट होने के बाद इट विल अगेन इंक्रीमेंट दिस आई. सो अगेन आई इज व्हाट नाउ 3. ऐसे करके करके वो आई को क्या होगा, 5 तक लेके जाएगा. वंस प्लस प्लस होने के बाद आई की वैल्यू जब 5 होगी तो हियर यू विल ऑब्जर्व आई is 5. So 5 is less than or equal to 5. So it will go here. The number is 5. इधर प्रिंट होगा. The number is 5. After executing, it will increment the value of I, which is currently 5, to 6. Okay, 6 हो गया. अभी वो जाके देखेगा कि 6 is less than or equal to 5 है क्या, नहीं, तो वो क्या करेगा, लूप से बाहर चला जाएगा. So this is how the iteration of the for loop works. तो हमारा लूप कितने बार वो अंदर गया, ये प्रिंट कितनी बार हुआ, 5 बार हुआ. ओके, वी सी द आउटपुट हियर. ओके, so yes. So let us see the output. पहले हमने क्या देखा, आई को क्या होगा, पहले आई इनिशियलाइज टू 1 होगा. 1 होने के बाद कंडीशन चेक होगी कि 1 इज लेस देन और 5. इफ इट इज ट्रू तो नीचे फॉर लूप में जाके क्या प्रिंट करेगा, द नंबर इज 1. $1. अभी करंट क्या है, वैल्यू उसकी 1, तो हमारी लाइन क्या प्रिंट होगी, द नंबर इज 1. इस लाइन के बाद हमारा आई का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, दैट इट विल बिकम 2.
अगेन इट विल चेक 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या, ट्रू है तो क्या आएगा, नंबर इज 2, राइट। ऐसे करके करके वो 3 4 तक आएगा। फिर अभी लास्ट में क्या होगा हमारा, आई प्लस प्लस होने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 5, तो हमारा 5 भी प्रिंट होगा। नाउ द लास्ट कंडीशन, व्हेन इट विल मेक द इंक्रीमेंटेशन ऑफ 5 to 6, 5 plus 1। तो देखो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 6 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 5, दैट इज व्हाई इट एग्जीक्यूटेड द लूप। तो हमारा द नंबर इज 6 प्रिंट होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो ऐसे वो फॉर लूप चलता है। आई होप इट इज क्लियर विद द एग्जांपल, right? So now next we will see the for each loop. As we have discussed earlier that this for each loop, it generally works with an array. Hmm? This loop works only on array and it is used to loop through each key value pair in an array. Now understand ये जो array है, here in the diagram you can see हमने देखा था कि array कैसे रहता है, एक देखो वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट array is a such type of a variable where you can store multiple values, and how these values are referenced, these values are referenced as, सपोज इस array का नाम है एज, तो एज 0 अगर मैंने बोला तो इट इज रेफरेंसिंग टू दिस 10 नंबर। अगर मैंने बोला इफ एज स्क्वायर ब्रैकेट 1 है तो इट इज रेफरेंसिंग टू दिस 36। तो लाइकवाइज इट स्टोर्स द वैल्यू, ओके। तो अगर हमको ये वैल्यू यूज करना है, अभी यहाँ पे भी हमको एक ही काम बार बार करना है ना, तो उसके लिए हमको फॉर ईच लूप यूज करना है। तो अंडरस्टैंड दिस फॉर ईच लूप इज ऑलवेज यूज विथ एन array। हाउ इज द सिंटैक्स, फॉर ईच, जैसे हम फॉर लिखते थे वैसे इधर लिखा है फॉर ईच ब्रैकेट में डॉलर array एज डॉलर वैल्यू, उसके अंदर की वैल्यू, एंड यहाँ पे आपको लिखना है कि उसने क्या कोड एग्जीक्यूट करा। वी विल सी इट विद एन एग्जांपल, ओके। सो अंडरस्टैंड, सी हियर हमारा पीएचपी प्रोग्राम पे रन करो। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, डॉलर कलर्स। सो व्हाट इज दिस डॉलर कलर, इट इज अ वेरिएबल, राइट। But now here you can see it is no more a normal variable, it is an array type of a variable। मतलब क्या है, इसमें हम multiple value store कर सकते हैं। So in the previous array we have seen there are numbers 10 36, वैसे ही I can also store string value in that array। So you can see how these are stored। कैसे लिखा है, array ब्रैकेट ओपन और सारे जो भी वैल्यूज आपको देने हैं दोज आर कॉमा सेपरेटेड एंड इन डबल कोट्स। तो रेड कॉमा ग्रीन ब्लू येलो, सो ये सारे ऐसे एरे में स्टोर होते हैं जब आप एरे टाइप का वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। अभी मुझे एक एक उसकी वैल्यू को रेफरेंस करना है या उसकी वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, फॉर ईच, हमारे एरे का नाम क्या दिया है हमने, here you can see the array name is colors as values, ये उसका सिंटैक्स है, as डॉलर वैल्यूज। अभी उसकी वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है वो प्रिंट करनी है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है वो प्रिंट करनी है। इसके लिए ये ऐसा चलेगा, इको डॉलर वैल्यू, मतलब पहला बार क्या देखेगा, वो पहला वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर दूसरी बार, तीसरी बार। when it encounters the end of an array, अभी येलो के बाद कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, लूप से बाहर आएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो हमारा आउटपुट में कैसे आएगा, वी आर यूजिंग बी आर हियर, मतलब क्या आएगा, पहले की वैल्यू क्या है, रेड, बी आर मतलब न्यू लाइन आएगी ना, तो नेक्स्ट लाइन पे क्या आएगा, ग्रीन, फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या आएगा, ब्लू, और नेक्स्ट लाइन पे क्या आएगा, येलो। सो दिस इज हाउ अ फॉर ईच लूप वर्क्स, ठीक है। नाउ वी विल सी हाउ आर द स्ट्रिंग फंक्शंस वर्किंग। अभी हम देखेंगे कि स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या है। स्ट्रिंग मतलब क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर, जो डबल कोट में हम लिखते हैं उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। तो देयर आर सम प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शंस इन पीएचपी ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, जिनको हमको यूज करना है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमको उनको कॉल करना है। तो हियर इज अ टेबल गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक कि हर एक फंक्शन स्ट्रिंग का क्या काम करेगा। वी विल क्विकली गो थ्रू व्हाट एग्जैक्टली दीस फंक्शंस डू। तो अगर आपने strlen फंक्शन को कॉल किया है तो वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड, strlen मतलब इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब आपने डबल कोट्स में जो भी कुछ दिया है
इसका वो हर एक इसका कैरेक्टर की वैल्यू काउंट करके उसका टोटल लेंथ देगा। माइंड वेल अगर उसमें स्पेसेस भी दिए हैं तो स्पेसेस भी इट विल काउंट एज अ कैरेक्टर्स। ओके, so it will return us that particular length. Next, str underscore word underscore count. अब ये इसका काम क्या है? It counts the number of words in a string. So how will you decide कि कितने words है? See generally a sentence कैसा रहता है? एक word होने के बाद रहता है space, एक word next then space. तो वो चेक करेगा कि कितने words है and it will return us the count of that word. Okay? Next क्या है? str रिवर्स करेगा। तो सपोज मैंने स्ट्रिंग दी हेलो, तो मैंने strrev हेलो दिया तो इट विल रिटर्न मी आंसर एज OLLEH। मतलब जो भी स्ट्रिंग आप दोगे उसको उल्टा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट strpos। अभी ये क्या करेगा देखो, इट सर्चेस फॉर अ स्पेसिफिक टेक्स्ट विथ a string and returns the character position of the first match, and if no match is found then it returns false। तो सपोज मैंने एक स्ट्रिंग दी है और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या पर्टिकुलर वर्ड मुझको ढूंढना है, तो वो क्या करेगा, मैं उसको वो वर्ड दूंगी और वो मुझे उसकी पोजीशन बताएगा। मैं एक पर्टिकुलर उस स्ट्रिंग में, मेरी एक बड़ी स्ट्रिंग है उसमें का एक वर्ड दूंगी उसको, स्ट्रिंग को strpos को, वो क्या करेगा कि वो चेक करेगा कि वो कौन सी पोजीशन पे है। इट विल रिटर्न मी द पोजीशन, and if suppose that particular word or a character is not there in my string then it will return me false। Okay, strre, suppose there is a need that you want to replace your string or some particular word with some another word, so you will use this str replace। ठीक है, सब स्ट्रिंग मतलब आपको जब भी एक पूरे स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट चाहिए काट करके क्रॉप करके, आप इमेज क्रॉप करके ना जितना चाहिए उतना ही लेते। सिमिलरली सब एसटीआर क्या करेगा, आपको जो भी स्ट्रिंग का पार्ट चाहिए, आपको अगर बीच में का चाहिए तो पहला वाला वो डिलीट करेगा, लास्ट वाला डिलीट करेगा, बीच में का वो आपको ला के देगा। दिस इज व्हाट अ सब एसटीआर फंक्शन रिटर्न। नेक्स्ट वेरी सिंपल, एसटीआर टू लोअर, मतलब अगर आपका अपर केस में स्ट्रिंग है तो इट विल कन्वर्ट इट टू लोअर केस। ठीक है, सिमिलरली सब str काउंट, अभी ये क्या करता है देखो, इट काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ सब स्ट्रिंग अकर्स इन अ स्ट्रिंग। मतलब अगर आपको चेक करना है कि मेरा एक पर्टिकुलर वर्ड मेरे उस स्ट्रिंग में कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इट विल रिटर्न मी द काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर। सपोज मैंने एंड दिया कि एंड मेरे स्ट्रिंग में कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो जस्ट गिव मी द काउंट, सो इट विल रिटर्न अस द काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग दैट इज एंड। UC words, it converts the first character of each word in a string to upper case। मतलब सेंटेंस केस पता है ना आपको कि अगर मेरे 4-5 वर्ड्स है तो हर एक वर्ड का पहला जो लेटर है उसको वो कैपिटल करवा के रिटर्न करेगा। ट्रिम, ट्रिम मतलब क्या है, आपको ट्रिम करना है। अगर मेरे एक स्ट्रिंग में बहुत सारे गलती से एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह ऐड हुए या अनवांटेड कैरेक्टर्स है, तो वो मुझे ट्रिम करके दे देगा। तो इट रिमूव्स द व्हाइट स्पेसेस एंड अदर प्रीडिफाइंड कैरेक्टर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब अगर मेरे स्ट्रिंग में कुछ एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस, स्पेस बार एक्स्ट्रा दबाए गए या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर गलती से बहुत बार दबा गया है, तो आई कैन ऑब्वियसली रिमूव दोस अनवांटेड कैरेक्टर्स यूजिंग दिस ट्रिम ऑप्शन। ठीक है, so we'll see this with an example। now observe my string is what $str में क्या दिया है, टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूस्ड बाय भाल भारती आर आल्सो पब्लिश्ड इन पीडीएफ। ये ऐसे कैसे हमने स्ट्रिंग str में डाल दी। ओके, तो पहला क्या किया है, इको br मतलब ये न्यू लाइन कहेगा, स्ट्रिंग क्या है हमारी, तो हमारी स्ट्रिंग क्या है, $str, मतलब वी आर सिंपली कॉन्केटिनेटिंग, है ना। तो आउटपुट में क्या आएगा, ये पूरा आएगा, पूरी लाइन है। न्यू लाइन पे क्या आएगा, str लेंथ अगर आपको देना है तो यू नीड टू यूज दिस फंक्शन डॉट मतलब कॉन्केटेनेशन strlen। इसमें हमने क्या किया, ये वेरिएबल पास किया, तो कौन सा वेरिएबल, ये पूरी स्ट्रिंग पास की। तो व्हाट इट विल डू, इट विल काउंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंक्लूडिंग द स्पेसेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड काउंट अगर मुझे देना है तो आई विल यूजिंग दिस फंक्शन str अंडरस्कोर वर्ड अंडरस्कोर काउंट। इसको मैंने ये स्ट्रिंग पास कर दी, तो ये क्या करेगा, इसमें कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्ड्स है, तो इट विल गिव मी द आंसर एज 10 हियर। ओके,
सिमिलरली रिवर्स क्या होगा, ये पूरा उल्टा का उल्टा आ जाएगा, विल सी द आउटपुट। नाउ रिटर्न द पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग, ये पोजीशन आपको देना है, मतलब आपको ढूंढना है कि मेरा बाल भारती जो है वो कौन से पोजीशन पे है। तो इट विल फाउंड द पोजीशन एंड इट विल रिटर्न द नंबर एट विच दिस बाल भारती स्टार्ट्स। ओके, रिप्लेस, अभी मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मुझे रिप्लेस करना है विद दिस, सो यू हैव टू राइट विच स्ट्रिंग यू हैव टू रिप्लेस विद व्हाट। तो अभी हमने क्या करेंगे, ये बाल भारती को रिप्लेस करेंगे विद व्हाट, स्टेट बोर्ड्स। किसको, तो ये जो पूरे स्ट्रिंग में बाल भारती जहाँ पे भी आपको दिखेगा उसको इससे रिप्लेस करो। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो पूरी स्ट्रिंग है उसमें बाल भारती जहाँ मिलेगा उसको वो इससे रिप्लेस करेगा, राइट। सो लेट अस सी द आउटपुट ऑफ दिस। स्ट्रिंग पहले प्रिंट की, फिर उसके बाद लेंथ काउंट हमने देखा था 10 वर्ड है। You can see how it has reversed the whole string. It has returned the position of the string, कहाँ पे है ये particular word बाल भारती, and it has replaced. See here you can see textbook produced by बाल भारती था पहले, बाल भारती के बदले स्टेट बोर्ड कर दिया, right? So this is how example है, क्या है, echo sub str 6, ये क्या करेगा, सब स्ट्रिंग निकाल के देगा। हम लोअर अगर करना है तो ये क्या करेगा, इस हेलो वर्ल्ड में जो भी कैपिटल में है उसको क्या करेगा, लोअर करेगा। ओके, देन इको सब स्क्वायर काउंट, मतलब हेलो वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज नाइस। इस पूरे स्ट्रिंग में वर्ल्ड कितने बार आ रहा है ये काउंट करके देगा, तो क्या आएगा, 1 और 2, है ना। यू सी वर्ड्स, इसमें क्या होगा, इको यू सी वर्ड्स, इट कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये सारा जो वर्ड है, ये दो वर्ड्स है, इसमें के पहले ये जो लेटर्स है वो कैपिटल हो जाए, ठीक है। जो स्ट्रिंग दी है वो है हेलो, विल प्रिंट लाइक दिस, जो भी स्ट्रिंग है आपकी। एंड इक्वल ट्रिम, ट्रिम मतलब क्या है, इस स्ट्रिंग में एचसीडी जो भी है वो निकाल देगा वो, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है अगर उसमें होगी वो निकाल के आपको वो स्ट्रिंग नया रिटर्न करेगा, ठीक है। So that is all for today's lecture. In the next lecture we will be studying what exactly an array is and the further part of our PHP chapter, ठीक है।